Good morning. Today you are going to learn something new, which is the most important topic these days, and everybody is somehow or the other affected by this, what I'm going to speak. So, I'm back, Anurag Saxena. It's not important whether you can see me or not, but it's more important at what I tell and the contents. Often people tell me, सर हम आपको नहीं देख पाते हैं, तो हमने कहा नहीं, हम देखने की चीज़ नहीं है, हम सुनने की और समझने की चीज़ है, और हो सके तो नोट करो. ओके, so the topic is, we call it 4 A's of stress management. See, stress is very, very important, and there are two types of stress. One is called good stress and one is called bad stress. Good stress है, जैसे Sachin Tendulkar used to say कि when I go to play even with Bangladesh, I find myself little bit stressed out. तो थोड़ा टेंशन थोड़ा रहता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं. अगर ये वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लेगा then it becomes a problem. So but here I'll tell you basically what is stress. Stress is the human reaction to an event in our environment. ऐसा कहा जाता है कि हमारी लाइफ में जो एनवायरनमेंट है उसका ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और वास्तव भी ये बात सही भी है. यू सी व्हाट हैपन्स, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आए तो उसका इम्पैक्ट फर्स्ट 20 मिनट्स रहता है. बस 20 मिनट्स तक यू आर लिटिल बिट, आई वुड से, ब्लैक आउट. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एनी गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़. But after 20 minutes, psychologist says that your brain and mind starts cooling down and starts reacting now. See, जो probable symptoms हैं जब stress होता है तो वो क्या होते हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है they are under stress. तो one of them is insomnia, नींद नहीं आनी, loss of mental concentration, आप कोई चीज़ बहुत concentration से नहीं सुनते, देखते, समझते हो या पढ़ते हो. Absenteeism, मतलब आप हो yet you are not there in the moment. And then depression, शुरुआत होता है तो पता नहीं चलता है, धीरे धीरे बढ़ता रह जाता है. और सब्सटेंस अब्यूज़, आई मीन आपको अजीब लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, मैं क्यों इस सिचुएशन में हूँ. पहले शुरू में नहीं पता चलेगा, बाद में होगा. Then comes this extreme anger and frustration. It's also a very big mental disorder. And family conflicts हैं, migraines हैं, headaches and back problems. I mean, these are mental and physical problems when you face stress. Now see, our life is basically surrounded by certain things, and I would say, what are those things? These are main important things. The first is home. It's very important. शुरुआत वहीं से जीवन की होती है और शाम भी वहीं होती है. Job, when you are in the office from, let's say, 9 to 5 or 10 to 6, whatever it is. Then comes is health, your mental health, your physical health, your emotional health, your spiritual health, and finally your financial health. Then come personals, what do you talk to yourself sitting alone. Then comes is nutrition, what do you eat, are you having excess of weight or you need to put on weight. Then security, again comes security is very important, your mental security, your emotional security, and I mean these are the real life situations. Finances, पैसा बहुत important है, और especially after COVID, lot of finance all over the world is going to be changed. The people will start taking money very seriously, और जो disposable income थी वो बहुत कम हो जाएगी. Then family, a very important, हमारी ज़िंदगी इसके आसपास ही घूमती रहती है. Environment, कि हम किस environment में हैं और किस तरीके से हम सोचते समझते हैं, उसका impact हम पर बहुत होता है. Then see what happens is, post traumatic stress क्या होता है. कोई आपकी ज़िंदगी में एक trauma आया तो we define it that post traumatic stress is a normal reaction in a normal person to an abnormal event. See, I am putting emphasis on abnormal event. कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो उसका हम पर बहुत असर होता है. प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जो होता है उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जो बहुत दिनों तक आप एक तनाव को खींचते रहे,
अंदर आपके बहुत सारा एक कह लीजिए कि नज़ला है गंदगी का, आप अंदर से यू आर नॉट वेरी हैप्पी गो गेटिंग पर्सन, स्ट्रेस बहुत है, अंदर ही अंदर आप घुटते हो रहते हो, लेकिन यू आर नॉट एक आउटसाइड आप नहीं कर पाते हो. तो दीज आर पॉसिबल रिएक्शंस विच वी कॉल इट इज़. फर्स्ट इज़ डिप्रेशन, देन एंग्जाइटी बढ़ जाती है, देन एंगर बढ़ जाता है, कन्फ्यूजन रहता है, योर माइंड इज, यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, यू आर नॉट एबल टू analyze or I always say people are suffering from a disease called paralysis of analysis. They don't analyze because they are paralyzed. Then comes is irritability, you are more irritative, चिड़चिड़े, बड़ी जल्दी हंसते नहीं हो, जोक्स पर भी नहीं. इम्पेशंस बहुत बड़ी चीज़ है, हर काम अपने समय पे होगा, समय से पहले नहीं हो सकता. अंडरस्टैंड नेचर, आप बीज लगाते हो तो दूसरे दिन पेड़ नहीं आ जाता है. चाइल्ड टेक्स 9 months टू कम आउट ऑफ अ वूम. एवरीथिंग नीड्स पेशेंस. और जो डॉक्टर के यहाँ लोग जाते हैं उनका नाम पेशेंट रखना क्यों रखा गया है? उनका नाम तो सुनामी, हरिकेन रखना चाहिए था, बट पेशेंट रखा है कि नाउ शो योर पेशेंस. देन कम्स इज नेक्स्ट पॉइंट आई वुड से इज फियर. वेरी बैड. डर बहुत ख़राब चीज़ होती है. मरने का डर, गरीब होने का डर, प्यार मोहब्बत में धोखा खाने का डर, दोस्ती में धोखा खाने का डर. डर, फियर इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोथ. आई टेल यू वन थिंग, इट्स नेवर नेवर नेवर. फियर के लिए आई से FEAR. आई डिफाइन इट लाइक दिस: फॉल्स एनिमी अपीयर्स रियल. अनजानी चीज़ जिसको आप जानते भी नहीं हो, फॉल्स एनिमी, वो आपको बिल्कुल सच लगेगा. फियर इज़ नॉट गुड for growth. If you want to grow and rise, get the hell out of this word called fear. Then comes is negativism. हर चीज़ में नेगेटिविटी. जब देखो आधा गिलास खाली है. क्यों? कोविड के बाद क्या होगा? अरे कोविड के बाद दुनिया बहुत तेज़ी से राइज करेगी. ये पहली दफ़ा कोई पैंडेमिक नहीं आया है. 1920 में भी आया था, 1820 में, हर 100 साल बाद ये आता है. नेचुरल है, ये गॉड का एक तरीके से पनिशमेंट है, तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढो. आई ऑलवेज से दैट आई लाइक दोज पीपल हु टेक आउट लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी इन एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस. तो वो आपके अंदर होना चाहिए. देन इज़ मेमोरी प्रॉब्लम्स. एक होती है एज की कि भाई ठीक है, एल्जाइमर्स होना शुरू कर देता है आफ्टर 55-60, फिर बढ़ता जाता है. एक होता है कि छोटी सी चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड टू इट्स ऑप्टिमम लेवल. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. देन कम्स इज हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस. यू थिंक मैं किसी की मदद क्या कर सकता हूँ? यार तुम करने को जब आ जाओगे तो बहुत कुछ कर सकते हो. कहते हैं ना, एक शेर है मेरा फेवरेट: करने पे जो आ जाएंगे तो तूफ़ान उठा देंगे, करने पे जो आ जाएंगे तो तूफ़ान उठा देंगे, करने की तो अभी हमने ठानी ही नहीं. सो डोंट बी होपलेस कि नहीं कुछ नहीं हो सकता. यार बहुत कुछ हो सकता है. इट्स ऑल अपॉन यू. और नहीं हो सकता है तो तुम्हें करना है. कि लोग मुझसे कहते हैं सर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. हमने कहा अगर कठिन काम है तभी तो करने ही होंगे. आसान काम कोई भी कर लेगा, कठिन तो खास लोग करते हैं. सो ऑफन पीपल आस्क मी, स्ट्रेस गुड और बैड फॉर अस? सो देयर इज़ नो रेडीमेड आंसर फॉर इट. Some amount of stress is essential for us to excel in life. This is called good stress or eustress. And then comes is, but when stress is too much, then it reduces performance. This is called bad stress or distress. So दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. बॉर्डर लाइन के क्रॉस कर जाओगे वो बैड स्ट्रेस हो जाएगा, एंड नहीं तो ठीक है. Now how do you recognize that you need a professional help? देखो भैया, हिंदुस्तान में काउंसलर्स की बड़ी डिमांड बढ़ती जा रही है और ये बहुत ज़रूरी है. यू मस्ट हैव काउंसलर्स फॉर एवरीथिंग. नाउ आपको कैसे पता चलेगा कि जब आपका बच्चा स्ट्रेस में है, उसकी जो स्कूल परफॉर्मेंस है वो डिटोरिएट हो रही होगी. इनएबिलिटी टू स्लीप और एक्सेसिव स्लीप. आइदर यू आर नॉट एबल टू स्लीप, यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, यू आर एक्सेसिव, सोते ही रहते हो, जब देखो सोते ही रहते हो. यार जैसे ही आँख खुले, लीव द बेड, लीव, उसे छोड़ो. लूजिंग और गेनिंग वेट, इट्स अगेन अ सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेस प्रॉब्लम.
देन फीलिंग लो और टायर्ड ऑल द टाइम्स, जब देखो थका हुआ दिमाग, थका हुआ शरीर, बड़े दुखी आत्मा, परेशान। सो मूड स्विंग्स, बड़ी जल्दी आपका मूड स्विंग्स होता है, ढूंढूं खुशी, ढूंढूं नाराज़गी, गुस्सा, शांति, क्राइंग, एक्सेस ऑफ क्राइंग, getting angry. You see, what is anger? Anger is not a result of a reaction of somebody else has done. किसी को आपने काम बोला, उसने वो काम नहीं किया, तो गुस्सा आप क्यों कर रहे हो भाई? गलती उसकी थी, उसने नहीं किया, तो गुस्सा आप कर रहे हो। बट अगेन बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि एंगरनेस इज़ वन ऑफ द बैड, वो बहुत गंदी चीज़ होती है। नॉट वॉन्टिंग टू टॉक टू एनी बडी, हमें छोड़ दो अकेला, तन्हाई और ये और वो, अरे दुनिया भर के खाली बैठ गए, पुरानी घिसी पिटी गज़लें सुन रहे हैं, सेल्फ अपने आप में पिटीनेस सिचुएशन है, हम थके हुए हैं, हम ये हैं वो, अरे तमाम दुनिया भर का। नाउ बिहेवियर स्ट्रेस सिम्टम्स, व्हाट आर दीज? नाउ लेट मी टेल यू, दीज सिम्टम्स विल हैव द नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। आप जो भी काम करोगे उसमें कहाँ पे इसका नेगेटिविटी आएगी वो मैं बताऊँ। पहले तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है, इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, देन इट विल मेक यू मोर एक्सीडेंट प्रोन। इन फॉरेन कंट्रीज व्हेन यू टेक 2-3 एक्सीडेंट हो जाते हैं, देन द काउंसलर टॉक्स यू व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड। एक्सीडेंट इज ऑलवेज व्हेन यू इज नॉट एबल टू फोकस ऑन ड्राइविंग एंड यू आर थिंकिंग समथिंग, गुस्से में हो और ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट होगा। कॉजिंग टू बी फॉरगेटफुल, हर चीज़ भूल जाते हो, नोट पैड, ठीक है। एज ओल्ड एज में मैं समझ सकता हूँ फॉर द ओल्डर पीपल कि अल्जाइमर स्टार्ट्स बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन डिजीज़ एंड बट उसकी तैयारी आप 30-40 साल से ही शुरू कर लो कि माई मेमोरी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, आई कैन विन, कौन बनेगा करोड़पति, आई कैन डू दिस, आई रिमेंबर एवरीथिंग। तो व्हाट हैपेंस, योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स टेकिंग दोज थिंग एज सीरियसली। तो जब भी आप कोई चीज़ भूल रहे होगा, आपका दिमाग कहेगा नहीं यार तुम तो भूलने वाले नहीं हो, तुमको तो याद रहता है। तो दैट इज़ इट, देन कॉजिंग यू टू बी वेरी नेगेटिव, यू बिकम अ वेरी मेरी तो एक खासियत है बहुत ज़्यादा, मैं किसी से मिलूँ, किसी के घर जाऊँ, किसी के ऑफिस में जाऊँ, 2 सेकंड के अंदर मुझे वहाँ का जो ऑरा है वो अंदर मेरे आ जाता है कि अगर नेगेटिव होगा मैं आई विल बी वेरी वेरी इम्पेशेंट, मुझे लग जाएगा समथिंग इज़ रॉन्ग। मैं बहुत कूल आदमी हूँ, मुझे सब कुछ दुनिया में आता है, बट यहाँ कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है, गेट आउट ऑफ एयर, निकलो बाहर यहाँ से। सो क्योंकि आप नेगेटिव हो जाओगे, सो यू मे निगलेक्ट योर अपीयरेंसेस, आपको काफ़ी कुछ लगेगा कि नहीं यार छोड़ो छोड़ो जाने दो ये वाला। यू मे मेक पुअर जजमेंट्स। यू सी व्हाट हैपेंस, अ फाइन person who is not imbalanced in his life will always take very good judgments in his life, and not only in his life, people will consult him for making judgments for them, so and it will causing you to make more mistakes। अगर तुम्हारा बिहेवियर में प्रॉब्लम है, देख गलती पे गलती, देख गलती पे गलती, देख गलती पे गलती करते चले जाओगे और सेल्फ रियलाइजेशन होगा यार मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही गड़बड़ घोटाला हूँ, समथिंग इज रॉन्ग, एंड देन इट्स योर एब्सेंटिज्म इज गोइंग बहुत हाई, जब देखो खोए खोए रहोगे। ना परफॉर्मेंस स्ट्रेस सिम्टम्स में क्या क्या है? यू मे नॉट मेक गुड डिसीजंस, यू फाइन मोटर स्किल्स आर अफेक्टेड, यू मे नो लॉन्गर एन्जॉय योर वर्क, काम बोझ लगेगा मुझे। व्हेन आई स्टार्ट फॉर द हाउस आई फील वेरी गुड, आई एम गोइंग टू एन्जॉय द म्यूजिक वाइल ड्राइविंग, आई विल गो टू ऑफिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। कभी मैंने टेंशन लेता ही नहीं मैं, और लोग कहते हैं ना मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, देता हूँ, वो भी गलत है भाई। क्यों दे रहे हो किसी को, क्यों परेशान कर रहे हो किसी को? तुम अपना काम करो, अपना काम करे। जब कॉन्फ्लिक्ट्स आए तो हैंडल इट प्रॉपरली, मोर प्रोफेशनली। सो एन्जॉय योर वर्क, बिकॉज इफ यू विल नॉट एन्जॉय योर वर्क यू विल बी ऑलवेज कर्सिंग कि क्या यार लाइफ इज दिस दैट। एनीवे देन कम्स इज योर अटेंशन स्पैन में बी अफेक्टेड। आप अटेंशन ही नहीं करो, कोई बोल रहा है आप लॉस्ट हो जाते हो, उसकी पूरी स्पीच आपने सुनी नहीं, आपने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया में चले गए, खो गए आप। एनीवे यू मे हैव मोर नेगेटिव थॉट्स, बड़ी नकारात्मक सोच आएगी, ये हुआ वो। अभी कोविड पे तो सोशल मीडिया बंद कर दो, इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ तो क्यों, मुझे तो ख़त्म हो जाना चाहिए। इतना नेगेटिविटी है, न्यूज़ खोलो तो ये है कि पता नहीं क्या क्यों। अरे यार अच्छी किताब खोलो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, म्यूज़िक्स करो, सुनो, अच्छी स्टूपिड मूवीज़ देखो जिसमें बहुत बेकार की कॉमेडी है,
तो वो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको भी कॉमेडी में भी आप अच्छी देखना है। कॉमेडी अच्छी बुरी नहीं होती, कॉमेडी कॉमेडी होती है, बट पीपल स्टार्ट, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर है, सीरियल में नहीं है, फिल्म में नहीं है, आपके अंदर है। योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल सफ़र, हमेशा आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ी रहेंगी, आपके अंदर कुछ होगा नहीं। जैसे एक फिल्म आई थी ना शोले, वो कहता है क्यों जय, अगर हम लोग किसी से लड़ें तो 15-20 पे तो भारी पड़ेंगे ही, तो कहता हाँ जब बोल दिया है तो फिर फलेंगे ही। दिस इज लुक एट द कॉन्फिडेंस इन द डायलॉग शोले, मुझे बहुत अच्छा लगा था। देन यू मे हैव डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सिचुएशंस, ऑन थोड़ा सा इधर उधर भटका करोगे, एंड ऑल ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी इज़ कंज्यूम, ख़त्म हो गई, है ही नहीं पॉजिटिव एनर्जी। Now see, now I'll come to the main points of the 4 A's of stress management. The 4 A's, what are the 4 A's? I would say first is accept it, second is avoid it, third is alter it, and fourth is adapt it. आप situation में अपने आप को डाल लो, and this all we teach in our NGO which is called Art of Excellence. We all tell them all to do this all. So this is it, one thing. Then comes is accept में, whenever we can't change the situation, sometimes we need to accept it for what it is, क्यों हुआ है ये, तो accept it, जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है। Learn from the past, always past में क्या हुआ था। You see, I always say making a mistake is not a mistake, repeating mistake is a mistake, बट अवॉइडिंग अ मिस्टेक इज़ अ बिगर मिस्टेक। सो गलतियाँ करो, गलतियों से सीखोगे। देन टॉक विथ समवन यू ट्रस्ट, टॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट। किसी पे ट्रस्ट करो कि लेट मी टॉक टू हिम, ही कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम वॉट एवर इट इज़। एंड देन कम्स इज आई वुड से यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ वेरी पॉजिटिवली। सब ठीक होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास पूरा। अरे यार ये गाने में बड़ी दम है, जब भी तुम्हें लगे, तो वो था ना एक गाना, तो वो है प्लस ऑल इज़ वेल का, ऑल इज़ सॉरी 3 Idiots का ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इट्स वर्क्स, इट्स अ साइकोलॉजिकल सेल्फ टॉक, इट्स, बट अनफॉर्चुनेटली लोग इस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। कीप स्माइलिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टी। मैच हार गए, अरे यार चलो कोई बात नहीं, अब अगली बार देखेंगे कि क्या होता है। तो दैट इज़ इट। सो आई वुड ऑलवेज से कीप स्माइलिंग एंड डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़। देन जॉइन अ सपोर्ट ग्रुप। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, मेरी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर किसी और का गम, आपको अपना गम कम करना है तो आप किसी और के गम में शरीक हो जाओ, तो आपको अपना कुछ लगेगा ही नहीं। वो एक गाना है ना, मेरा फेवरेट है अमृत फिल्म का, कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। अरे फैंटास्टिक, जिसने भी लिखा है ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। देन द सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड। नाउ व्हाट यू डू, प्लान अहेड टू रीअरेंज योर सराउंडिंग्स। कि यार देखो हम लोग वहाँ जाएंगे फिर वही होगा, इसको पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं। सो यूज़ योर प्री एक्टिव माइंड रादर देन रिएक्टिव माइंड, ओके। देन अवॉइड समवन हु कॉन्स्टेंटली बॉदर्स यू। जो आपको लगे गेट यार वो एक वायरस है, उससे दूर रहो। जो तुम्हें कोई भी परेशान करे, उसके चक्कर में, उसको सुधारने के चक्कर में मत पड़ो ना। उसको बोलो आई एम सॉरी यार, वी आर ओके, बस दूर से थैंक यू। देन अवॉइड टॉकिंग ऑन मोर देन यू कैन हैंडल। कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हम ही दुनिया बदल सकते हैं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम गॉड, आई एम एवरीबडी। अभी तुम कुछ नहीं हो, सिंपल एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हो, ऑर्डिनरी रहो, थोड़ा सा मेहनत करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करो, बट डोंट ट्राई टू बिकम गॉड, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लीव द सिचुएशन। क्या कर सकते हैं, अब जो होना है हो गया है, क्या करेंगे अब। कोई किसी के साथ नहीं मरता। मेरी फेवरेट लाइफ में मैं भी कभी उससे ऑटोग्राफ मांगते तो बोलते हैं सर कुछ कोट लिख दीजिए, तो मैं कहता हूँ माई लाइफ फेवरेट 3 words आर लाइफ मूव्स ऑन। अवॉइड डिस्कसिंग सर्टन टॉपिक्स। जो आपको लगे ना ये टॉपिक्स है, पॉलिटिक्स, रिलीजन, फिनेंस, इनसे थोड़ा सा ज़रा दूर रहो, क्योंकि इसमें ये बड़ा, इसमें मेंटल वॉर में लोग पड़ जाते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू, मुस्लिम एंड ऑल दैट, उसमें यार तुमको, मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी आइडियोलॉजी और स्कूल ऑफ थॉट, बट वाई टू, इफ़ यू वांट टू डिबेट समथिंग गुड,
that how the world is going to handle global environment, how the economy is going to revive, how the government is, I mean, हर जगह वोट बैंक पॉलिटिक्स मत करो प्लीज़. Anyway, alter it now. Changing stressful situation may allow you to evade the stress altogether. अब जैसे मेरे कुछ ऐसी जगहें जहाँ मैं जाता हूँ, मैं सोचता हूँ यार ये साले लोग मुझे परेशान करेंगे, तो मैं जाके पूरा गेम ही बदल देता हूँ, गेम चेंजर. वो एक बड़ा सिचुएशन ऐसी होती है जिसके बताएं कि मतलब दुखी लोग होंगे वहाँ, परेशान, ये हो गया वो हो गया, तो जाके ना एकदम से बोलो ना कुछ नहीं, चलो हो गया चलो आगे बढ़ो, ये करो वो करो, आगे प्लान करो. आज समवन टू चेंज देयर बिहेवियर. अगर आपको लगता है टेल समवन, देखो यार तुम प्लीज़ क्रोध बहुत करते हो, मैं नहीं करना चाहता, हम लोग की नेगेटिव एनर्जी टकराती है, सो प्लीज़ तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर हूँ. ओके, तो टेल द पर्सन हाउ यू फील. उसको बोलो आई एम गेटिंग रियली पिस्ड ऑफ, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा अलग रखो. देन चेंज द टाइम प्लेस सेटिंग. जिस जगह आपको लगता है ये बढ़ जाता है, चेंज इट. एंड मैनेज योर टाइम बेटर. मैंने पिछले लेक्चर्स में बोला था ना, जो टाइम ठीक से मैनेजमेंट जिनको आता है उनको कभी स्ट्रेस नहीं होता, उनको कभी नहीं होगा स्ट्रेस लाइफ में. एंड बी मोर असर्टिव. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल्टर. एंड द लास्ट वन इज अडैप्ट. Now what happens is, by anticipating stresses in your life and making plans to adapt, you can save your lot of aggravations. बहुत सारी चीज़ें तो आप कर सकते हो. यार अब क्या करें, अडेप्ट है, बत्ती चली गई है तो मैं 2 तरीके से रिएक्ट करूँगा. मैं कोई स्टोरी सुनाऊँगा, कोई जोक सुनाऊँगा, या फिर मैं बैठ के बत्ती ना आने पर रोऊँगा, परेशान होऊँगा, आसपास के लोगों को परेशान करूँगा, बत्ती चली गई, बत्ती चली गई. भाई चली गई यार, क्या हो गया उससे, लाइफ आगे चलो ना. चेंज योर थिंकिंग, because thinking is everything. Take it as an opportunity. वाह बत्ती चली गई, चलो यार बहुत दिन हो गए हम लोगों ने मोमबत्ती नहीं जलाई, चलो आज जला के देखते हैं मोमबत्ती भी कैसा फील होता है. खत्म. आस्क विल दिस मैटर इन अ ईयर. क्या ये मामला जो है चल रहा है कोविड 1 साल में ख़त्म हो जाएगा? मुझे लगता है 1 साल में क्या, अभी 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा. आई एम टॉकिंग ऑन 12 जून 2021. अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा. फिर देखते हैं आगे क्या होता है. हो सकता है वापस आए कोई फेज़, 3rd 4th फेज़ 6th फेज़, बट लेट्स सी. नहीं आना चाहिए. कुछ थोड़ा पूजा पाठ करो, थोड़ा सा शांति रखो अपने अंदर. एंड आस्क इज़ इट वर्थ गेटिंग अपसेट ओवर. नहीं, नो डाउट कोविड ने बहुत से निर्दोष लोगों की जान ली, बहुत सा हुआ, बट यार हर साल हिंदुस्तान में एवरेज 17-18 हज़ार आदमी मरता है रोड एक्सीडेंट से, मर्डर से, रेप से, इससे, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं. और इधर अगर 8-10 आदमी मर रहे हैं तो कोविड को लेके, तो यार दिस इज़, आई मीन लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक टू दिस. हाँ, बट नहीं होना चाहिए था. एंड हर गवर्नमेंट ने, आपका अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, सब ने हैंडल किया उसे. इंडिया भी कर रहा है और इंडिया के लिए चैलेंजेस ज़्यादा थे. एंड दैट इज़ इट. देन I will say 3 M's. I'll speak about 3 M's also, and these are my 3 M's. Stress has 3 solutions and I call it by 3 M's. 4th one भी है लेकिन वो बताऊँगा नहीं क्योंकि उसको मुझे बताने के बाद खुद हंसी आ जाती है. तो 3 M's है. फर्स्ट इज़ मेडिटेशन. प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम को, स्ट्रेस को मेडिटेशन से दूर करो. दूसरा है मोटिवेशन. बिकम मोटिवेटर. रीड गुड बुक्स, अंडरस्टैंड गुड बुक्स, वॉच सम गुड वीडियोस. किसी में कोई गंदगी मत देखो, फेवरेटिज्म मत करो, ये अच्छा है वो अच्छा. हर मोटिवेशनल स्पीकर कुछ ना कुछ अच्छा बोलेगा, वरना वो स्टेज पे ना होता, रिक्शा चला रहा होता. तो उसके अंदर से जो पॉजिटिविटी है वो निकालो, और जो तुमको पहले से आता है उसमें तुम करो या आई इज़ रिफॉर्मिंग, कि जो मैं सोचा था वो बिल्कुल सही बोल रहा है. एंड नहीं होगा जब मोटिवेशन से काम, मेडिटेशन से, भैया फिर तो चाहिए मेडिकेशन. अभी तुम दवाइयाँ लेना शुरू करो, और इससे भी कुछ ना हो तो मॉर्टिफिकेशन, यानी कि व्हील्स. नहीं, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, लीव इट. ओके, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स डेली, कि अपने आप को सुबह उठ के देखो यार क्या क्या आज मैं जिंदा हूँ, थैंक गॉड. गेट प्रॉपर रेस्ट एंड एक्सरसाइज, डू इट. सेट असाइड पर्सनल टाइम विद फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स. हेल्प समवन लेस फॉर्चुनेट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडरलाइन. आई वुड हैव डन इट, कि किसी की भी मदद करो, आपको अपना दुख कम लगेगा. रीड एंड लिसन टू मोटिवेशनल बुक्स एंड टेप्स एंड लेक्चर्स एंड ऑल दैट. मोटिवेशन इज़ नॉट परमानेंट. लाइक जैसे फायर इज़ नॉट परमानेंट, यू हैव टू कीप ऑन पुटिंग मिट्टी का तेल, पेट्रोल इन इट, तभी वो जलती रहेगी. ऐसे ही मोटिवेशन भी परमानेंट नहीं है. आपको रोज़ अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा. ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है. रिफ्लेक्ट ऑन योर विक्ट्रीज, थिंग्स यू हैव फॉरगॉटन दैट वर स्पेशल. हाँ, वो मैच जीते थे, वो याद है, वो ये है, वो ये एक्सेट्रा, उसको ध्यान दो.
क्रिएट एन अपबीट पॉजिटिव ग्रीटिंग्स। सो कुछ टेस्ट होते हैं जो मैं आपको इतना कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि यू नीड अ काउंसलर, वो टेस्ट होते हैं जस्ट क्विज टाइप के होते हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अडेप्टेशन टेस्ट, आई कॉल इट फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, ओवरलोड टेस्ट, डेप्रिविएशन टेस्ट, न्यूट्रिशन टेस्ट, सेल्फ डिसेप्शन टेस्ट, खुद से धोखाधड़ी करने वाला भी टेस्ट होता है, इरैशनल बिहेवियर टेस्ट, देन रिएक्टिविटी टू एंग्जाइटी टेस्ट होता है, एंड कंट्रोल टेस्ट, हाउ यू कैन विद कंट्रोल एवरीथिंग, एंड कोपिंग टेस्ट। तो ये 10-12 टेस्ट हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। सब ऑनलाइन भी हो जाते हैं, किसी काउंसलर से मिलो वो कर देगा। मैं थोड़े पैसे लेता हूँ क्योंकि वो पैसे मैं अपने NGO में डाल देता हूँ, मैं वो पैसे को अपने पास नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं अपनी इल्म देता हूँ, उसके बदले में पैसा लेके एक और संस्था को खड़ा करता हूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत लंबा हो गया स्ट्रेस पे, गाने खूब सुना करो। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।